बोलने के बाद का नतीजा ये है कि बोलना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। मुझे इस बात का बखूबी एहसास है कि 2018 के बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर की असेंबली में जम्मू कश्मीर का बजट पेश हुआ। उसके साथ साथ मुझे इस बात का भी एहसास है, जो मुझे मुझे इसका ख्याल आया, कि कम से कम जम्मू कश्मीर में ये पहली मर्तबा है कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला ने फाइनेंस मिनिस्टर की सूरत में बजट पेश किया है। कोशिश हमारी तरफ से हुई कि बजट वो पेश हो जिससे लोगों को फायदा मिले, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ी सी आसानी आए और जम्मू कश्मीर में तरक्की का दौर जो है वो और तेजी से आगे बढ़े। ये हमारा कभी दावा नहीं था कि सारा कुछ एक ही बजट में होगा। न हमारा ये दावा था कि हमारे इलेक्शन में किए हुए वादे सारे एक ही बजट में पूरे होंगे। तो इसलिए मैं यहां बैठ के ये नहीं कह रहा हूं कि सारा कुछ अब हो गया है। हम ये कह रहे हैं कि आने वाले 5 साल के लिए हमने बुनियाद रखी है। बुनियाद मजबूत हो तो उसके ऊपर जो दायरा बनता है, जो स्ट्रक्चर बनता है, वो मजबूत होगा। अगर बुनियाद कमजोर रही तो जो आप उन बुनियादों पर कायम करने की कोशिश करोगे वो रहेगा नहीं। और कहीं पर भी, किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में जो ख्याल रखना है तो सबसे पहले ख्याल उनका रखा जाता है जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए सोच समझ के इस बजट में जो इनिशिएटिव्स लिए गए, जिन वेलफेयर मेजर्स का आज ऐलान हुआ, वो जम्मू कश्मीर की सबसे गरीब जो तबका है उनके लिए है। ये बुनियाद है। आगे जैसे जैसे हम जाएंगे और हमारी माली हालत बेहतर होती जाएगी, जो सोशल वेलफेयर मेजर्स हमें लेने होंगे उनका दायरा जो है बढ़ता जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं अपनी जगह मुतमैन हूं कि जिन हालात में आज जम्मू कश्मीर है फाइनेंशियली, और एक यूटी की सूरत में, ये जम्मू कश्मीर के लिए एक बेहतरीन शुरुआत है। और मेरी और मेरे साथियों की, हमारी हुकूमत की लगातार कोशिश रहेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस इलेक्शन में हिस्सा लेने का भरपूर फायदा हासिल हो। तो ये कहते हुए मैं डायरेक्ट इंफॉर्मेशन साहब से कह दूंगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाएं। Sorry, you'll have to speak a little slowly. I didn't hear you. You're putting more emphasis on? Sir, you are putting more. No, our emphasis is not on one particular sector. Our emphasis is on taking J&K forward in a balanced manner, focusing on asset creation, focusing on improving the economy. In improving the economy, we want to focus on all three sides: the primary sector of the economy, the secondary sector, and the tertiary sector. So that means manufacturing, services. We have looked at all of these. I talked about
growing the industrial base of Jammu and Kashmir, starting and expanding our industrial manufacturing areas. I have talked about the startup policy and giving a boost to entrepreneurship. There's also a renewed focus on agriculture and horticulture. Tourism is a major sector of our economy. We are looking to grow tourism arrivals both in Kashmir as well as in Jammu. Horticulture, of course, is an important facet of our economy. So it would be wrong on anybody's part, including mine, to make the case that we are focused purely on one part of the economy. That is on the economic side. On the governance side, as I said, there are initiatives for improved governance, for asset creation, and for improving the social network, the social net that is available to our weakest sections of society. Private projects. Actually, in my budget speech, I've said that we are formulating a new hydropower policy. It is currently at the formulation stage within the Power Department. And as soon as we have the policy, the framework of the policy is ready. It's just that it has to be added to. Once the policy is ready, it will be put before the people. But the aim of that policy, again, is to focus on both the generation side, so that we have greater generation, and also on the distribution, transmission and distribution side as well, so that the losses that we have in our transmission and distribution system, those are also brought down. पहले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कम नहीं हुआ है. कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप देखें तो 24-25 जो हमारा RE है वो 27,544 है. जो हमारा 25-26 का BE है बजटेड ये है 32,607. तो इसको बढ़ाने की बात है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कमी हुई है, जिसके लिए फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने आपको पहले ही समझाया है. वो इसलिए है कि हमारी पुलिस की बजट और पुलिस पेंशन जो है वो जम्मू कश्मीर की बजट से हटा के मरकजी होम मिनिस्ट्री की बजट में डाला गया है, इसलिए इसमें कमी आई है इस बार. मैं अब आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए ना. पिछले साल की सैलरी में जो हमारी पुलिस है उनकी सैलरी बिल इसमें शामिल थी. इस साल वो सैलरी पुलिस कंपोनेंट जो है वो हमारे बजट से हटा के मरकजी बजट में डाला गया है, इसलिए वो निकाल के ये नंबर कम हुआ है. एम्प्लॉइज की तादाद कम नहीं हुई है. एम्प्लॉइज की तादाद बढ़ेगी, घटेगी नहीं, लेकिन सैलरी कंपोनेंट कम हुआ है क्योंकि वो हिस्सा जो हम पुलिस को तनख्वाह के तौर पे देते थे वो अब हमारे बजट से हटा के मरकज की बजट में आ गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. जहां तक डेली वेजर्स और इनकी बात है, उनके लिए एक पॉलिसी हमें बनानी होगी. पहले तो ये है कि हमें उनका नंबर तय करना होगा, क्योंकि आप जिससे बात करें नंबर बदलता रहता है. कहीं पे भी एक नंबर हमारे पास है नहीं. जब हमारे पास नंबर होगा उसके बाद उनके लिए हमें क्या पॉलिसी बनानी होगी वो हम तय कर सकते हैं, लेकिन जरूर उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा. और जहां तक आपने AAY और BPL वाली बात की, जैसे मैंने शुरू में कहा, हमारा फर्ज है कि जो सबसे ज्यादा मदद के हकदार हैं उनको मिलना चाहिए. तो इस बजट में सोच समझ के हमने AAY को जो है मदद की. अब आगे जाके जैसे हमारी माली हालत जो है बदल जाएगी, जिस तरह वो नए प्रोजेक्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स हमारे जो ऑन स्ट्रीम आ जाएंगे, उससे हमारी कमाई बढ़ेगी, और कुछ इकदाम उठाए जाएंगे जिससे हमारी कमाई बढ़ेगी. उसमें फिर हम जो BPL कैटेगरी के लोग हैं उन्हें भी जो फायदे गवर्नमेंट की तरफ से मिलने चाहिए उनको भी इनमें शामिल किया जाएगा. न्यू पेंशन स्कीम का ओल्ड पेंशन स्कीम पेंशन, उसमें तो कोई बदलाव नहीं है. ओल्ड पेंशन स्कीम के मुलाजिम जो है वो ओल्ड पे रहेंगे, जो नए मुलाजिम लगे हैं वो न्यू पेंशन स्कीम पे होंगे, और इसमें कोई बदलाव लाने की बात नहीं है. जहां तक जर्नलिस्ट के पेंशन्स वगैरह की बात है, मैं ईमानदारी से कहूं हमने इसके बारे में सोचा नहीं है. लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसे मतलब आइडियाज हैं जो आप शेयर कर सकते हो, उसमें फिर आप देख लीजिए ना कितना बर्डन आप उठाने के लिए तैयार हो और कितना आप हमारे ऊपर डालने के लिए कितना चाहते हो. बात की
क्योंकि हम चाहते हैं कि एक वाइब्रेंट प्रेस जो है वो कायम हो। जम्मू का प्रेस क्लब चल रहा है शायद, लेकिन श्रीनगर में चल नहीं रहा है। श्रीनगर का प्रेस क्लब दोबारा चले, उसके लिए इकदाम उठाए जाएंगे। We've had so many questions that I don't know where to start. One, SRTC daily ridership is more than 20,000. So it's not as if SRTC buses are going empty. And it is our endeavor to augment that fleet and strengthen SRTC's network. So obviously, ladies, when they're able to travel free, both within the e-bus network and SRTC, we believe that it will benefit them greatly. I don't expect anything but criticism of the budget from the opposition, because that's why they're called opposition. If they were anything else, they would be in government. I mean, it would be difficult for you to find me an example where an opposition has come out from Parliament or the Assembly and praised the budget. Therefore, that's not for me any sort of criteria. I believe that we have presented a budget that is people-friendly. It's a love letter to the people of Jammu and Kashmir. To that extent, if there are people of Jammu and Kashmir who voted for the BJP, then it's a love letter to them as well. But it's also a love letter to the people who voted for NC, voted for Congress, that voted for PDP, and a love letter of the people of Jammu and Kashmir who didn't vote at all. So let's not be sort of unfair and make this as a love letter only to the BJP. It's a love letter to the people of Jammu and Kashmir. Now, on the third thing, I think that proverb was not an expression of helplessness, because there is a balm. If that proverb had been about the absence of a balm at all, then it would have been helpless. There is a balm, but there are many wounds, which is a fact. I mean, if you go by the numbers that Santosh put in front of you, if you go by the numbers that I put in front of you in the assembly, the fact is that the problems are many, but the resources are limited. And that's why this budget was an exercise in trying to do the maximum good with the least deployment of resources. As our resource position improves, as we move more towards a self-sufficient Jammu and Kashmir, obviously that will change. Now, the question that you asked me, I still maintain that a UT with assembly is by far the worst form of government in the country. I have no hesitation in saying this. I've said this before, I'll say it again. There should only be two systems in this country. Either you have a UT without assembly, or you have a state. Because please remember, union territories were envisaged as territories that were too small to be states. That criteria does not apply to J&K. So, that's it. Okay. UNT के लिए जो है बजट में जिक्र किया है कि उनकी बेहतरी और जो ट्रांजिट अकोमोडेशन है उसको कंप्लीट करने का जो प्रोजेक्ट है वो हम कर लेंगे। जहां तक वापस ले जाने वाली बात है उसका बजट से कम और हालात से ज्यादा लेना देना है। मैं बार बार ये कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में से कश्मीरी पंडित इसलिए नहीं भागे क्योंकि उनकी माली हालत खराब हुई, वो इसलिए गए क्योंकि उनके जान को खतरा था। जब तक हम उस खतरे को नहीं हटाते हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो पूरी तरह से वापस जाएंगे। इसलिए मिलके फिलहाल यूटी में ये जिम्मेदारी हमारी साझा है, एलजी साहब की भी और इलेक्टेड गवर्नमेंट की। मिलके हमारी कोशिश होगी कि कश्मीर में उस तरह के हालात कायम किए जाएं जिससे कि कश्मीरी पंडित जो वहां से निकल गए वो अपनी मर्जी से वापस जा सके। For the restoration of statehood, we're working on a time frame, but I don't think it would be appropriate for me to talk about it at this point in time. Needless to say, it is work in progress. That is the answer to the second part of your question. As to the first part of the question, let's be honest. I can always do with more money. No matter how much Government of India gives Jammu and Kashmir, I can always find ways of spending more. But I'm extremely grateful for what we have. So I don't want to in any way sound ungrateful by saying कि ना हमें और मिलना चाहिए था। जितना मिलेगा हम खर्च करेंगे, लेकिन जितना अभी तक मिला है उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले दूं। फिलहाल मर्जर का कोई प्रपोजल मेरे पास नहीं आया है, ना इस पे कोई बात हुई है, और ये मैं पहली मर्तबा सुन रहा हूं कि इस पे हमें सोचना भी चाहिए।
फिलहाल इसमें कोई ऐसी बात नहीं आई है जिस पे कि हम सोचें कि यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ जो है मर्ज करना है। जहां तक आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, हम जैसे मैंने बजट स्पीच के दौरान कहा है, हम एक नया जाल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है पूरे जम्मू कश्मीर में बिछाने पर वादाबंद हैं। उसमें से दो चीज़ों का आपने जिक्र किया, एक श्रीनगर और जम्मू के लिए नए इंटरनेशनल क्वालिटी के स्विमिंग पूल वो कायम किए जाएंगे। और आपने पूछा कि क्या जम्मू वाला जो है टाइम पे कंप्लीट होगा, बिल्कुल होगा। सर, बजट से मैं वही डिप्टी सीएम साहब मुझे याद दिला रहे हैं कि मैं खुद खाता नहीं हूं, तो मैं दूसरों को भी शायद ये सबक देने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ही कम खाओ। नहीं ना, अब इसमें हम तो सिर्फ बात ही कर सकते हैं, मिसाल पेश कर सकते हैं। हम अपने आप में एक मिसाल बन के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आप मेरी उम्र में 55 साल की उम्र में मैं 20 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, तो फिर 20-22 साल के जो लोग हैं उन्हें क्या उनके पास क्या बहाना है? अगर कि मेडिकली वो फिट हैं, वजन वो कम क्यों नहीं रख पाते? तो चीजें हैं, लेकिन मैं कोई बड़ा डंडोरा पीट के लोगों के पीछे नहीं दौड़ रहा हूं। सिर्फ कोशिश कर रहा हूं कि एक मिसाल कायम करूं जिसको ज्यादातर लोग फॉलो कर पाए तो अच्छी बात होगी। और सबसे पहले तो मैं अपने मिनिस्ट्री साथियों को कहूंगा कि वो मेरे साथ 5 किलोमीटर दौड़ना शुरू करें, फिर बाकी जम्मू कश्मीर को दौड़वा दूंगा मैं।